بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ آئیے سنتے ہیں آج کی سچی خوفناک کہانی۔ بنگلے کا تالا اتنا خوبصورت ہے تو اندر کتنا قیمتی مال ہوگا۔ عاطف میر نے دماغ میں شیخ کاشف کے گھر کے باہر گیٹ پر لگے خوبصورت تالے کو دیکھ کر یہی خیال اپنے دماغ میں گھمایا، موٹر سائیکل کو کک ماری اور اپنے اگلے مشن پر روانہ ہو گیا۔ عاطف کے والد ساجد میر بہت ہی سفید پوش آدمی تھے۔ اپنے بیٹے عاطف میر کو پڑھا لکھا کر معاشرے کے لیے ایک ہنرمند اور کارآمد شخص بنانا چاہتے تھے۔ یوں اس کی زندگی کے کچھ سخت اتار چڑھاؤ نے اسے ایسا بننے پر مجبور کر دیا۔ وہ ایک پیشہ ور ڈاکو تو نہیں تھا، لیکن معاشرے کی محرومیوں نے کاشف میر کو ایسا کرنے پر اکسا دیا۔ ساجد میر اپنے بیٹے عاطف میر کو 7 سال کی عمر میں اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ایک ماں تھی، اس کا ذہنی توازن بھی درست نہیں تھا۔ چلتے پھرتے بری صحبت نے عاطف میر کو لوگوں کے گھروں سے چوریاں اور ڈکیتیاں کرنے کا عادی بنا دیا۔ آج حسب معمول عاطف میر کا اگلا ٹارگٹ شیخ کاشف کا بنگلہ تھا، جس کا تالا دیکھ کر عاطف میر نے سارا منصوبہ تیار کر لیا۔ رات کی تاریکی میں عاطف میر نے شیخ کاشف کے بنگلے کے گرد خاردار تاروں میں اندر گھسنے کے لیے دیوار کا جائزہ لیا۔ یہ رات کے 2 بج رہے تھے۔ سارا محلہ نیند کی گہری وادیوں میں کھو چکا تھا۔ تاحد نظر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بس ایک چھوٹے سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جو شاید اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھیں۔ وہ دیوار کے کونے پر جا کر ارد گرد کا باریکی سے جائزہ لینے لگا۔ جب عاطف میر کو کسی بھی رد عمل کا نہ آنے پر مکمل یقین ہو گیا تو اس نے اطمینان سے اپنا بیگ کھولا، اونچے گیٹ پر ایک لمبی رسی پھینکی اور گیٹ کو پھلانگتا ہوا سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ کاشف شیخ اور اس کی گھر والی آج اپنی شادی کی 24ویں سالگرہ بنانے کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کسی مہنگے ہوٹل پر ایک خوبصورت آراستہ سا پینٹ ہاؤس بک کر رکھا تھا۔ عاطف میر کو تو اس تک کی بھی اطلاع تھی۔ وہ اس فنکشن کی زینت بننے کے لیے آج رات اپنے گھر سے باہر تھے، اور پھر چند ہی لمحوں میں بنگلے کے درمیان واقع صحن کے عین وسط میں برآمدے کے پلر کے ساتھ وہ کھڑا تھا۔ آہستہ آہستہ بنگلے کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھا، جو معمولی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ دروازہ کھلنے کے ساتھ ایک پرمسرت خوشبو کے جھونکے نے عاطف میر کا استقبال کیا۔ عاطف میر نے زندگی میں پہلی بار ایسی مہنگی ترین خوشبو سونگھی تھی۔ گو کہ اب تو لوگوں کے گھر جاتے جاتے اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ لوگ کس قسم کی خوشبوؤں کا استعمال کرتے ہیں۔ خاص کر امیروں کے مزاج کا تو اسے اچھی طرح پتہ تھا، لیکن یہاں جو حالات پیش آئے تھے وہ قطعاً غیر معمولی تھے۔ کچھ دیر وہ کہیں کھو سا گیا، لیکن پھر جلد ہی ہوش میں واپس آ گیا۔ احتیاط کا دامن تھامے وہ ایک بڑے ہال میں داخل ہوا۔ ہال کے درمیان لگے مہنگے ترین فانوس سمیت ہر چیز بیش بہا مہنگی اور قیمتی تھی۔ عاطف نے ہوس بھری نگاہوں سے اس سب کو دیکھا اور سوچنے لگا کہ کاش اسے اتنا وقت ملتا جس میں وہ سارا سامان اٹھا کر کسی ڈمپر پر لوڈ کرتا اور پھر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاتا، اپنا ایک خوبصورت سا گھر سجاتا۔ اپنی لالچی سوچ پر وہ خود ہی ہنس پڑا۔ ہال رنگ برنگے برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ اطمینان سے وہ آگے بڑھا۔ ہال ایک چھوٹی سی لابی کے ذریعے شیخ کاشف کی بیگم کے کمرے سے منسلک تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کمرے کے اندر موجود لاکر کے سامنے تھا، جس میں شیخ کاشف کے بیرون ملک سے لائے ہوئے اپنی بیگم کے لیے قیمتی زیورات سمیت بہت سے قیمتی تحفے تحائف پڑے ہوئے تھے۔ عاطف میر لاکر کھولنے، تالا توڑنے کا کافی تجربہ کار ہو چکا تھا۔ ایسے 20 صندوق کھولنا عاطف کے آگے اب تو بچوں کا کھیل تھا۔ لاکر کھلنے کی دیر تھی۔ قیمتی زیورات کی چمک دیکھ کر اس نے انگلی منہ میں ڈالی، کیونکہ آج تک کاشف میر جتنی بھی ڈکیتیاں کر چکا تھا، اتنی مقدار میں سونا اور چاندی اس نے شاید پہلی بار دیکھا تھا۔ اس سیف میں کچھ قیمتی زیورات اور بھی موجود تھے جو صرف اور صرف ایک موتی کی صورت میں تھے۔
ये बहुत ही कीमती पत्थर थे। आतिफ की खुशी का ये लम्हा ज्यादा देर तक बरकरार न रहा, और क्योंकि गेट खुलने की आवाज उसके कानों के पर्दों से टकराई थी तो उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि कोई घर के अंदर आ चुका है। पल भर में उसके औसान खता हो गए, क्योंकि उसे इस बात की हरगिज़ तवक्के नहीं थी। तभी वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया, लॉबी में आया और सीढ़ियों से बालाई मंजिल की तरफ फलांग गया। सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनकर शेख काशिफ और बेगम शेख के चेहरों की हवाइयां उड़ गईं। अरे, तुमने गेट लॉक किया था क्या सही तरह से? काशिफ शेख ने घबराई हुई आवाज में अपनी बेगम से पूछा। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ गई। यहाँ पर देखा तो ताला खुला हुआ था। इनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हेलो बेगम, मैंने तुमसे कुछ पूछा था, कुछ तो बोलो। शेख काशिफ ने अपना सवाल दोहराया। बेगम शेख घबराई हुई आवाज में बोली, गेट, शायद, क्या तुम भूल गई हो? इन्होंने अपनी बीवी को हिचकिचाते देखकर पूछा। हाँ हाँ कह दो कि जिंदगी की सारी जमा पूंजी लुटा दी है तुमने। तुम्हारी एक मामूली सी गलती ने मेरी जिंदगी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। शेख काशिफ मुसलसल अपनी बेगम पर बरस रहे थे। वो भी हवास बाख्ता सी उनके सामने ही खड़ी थी। फिर इन्होंने अपनी अलमारी से रिवॉल्वर निकाला और ऊपर वाली मंजिल की तरफ भागे। लेकिन आतिफ तो दीवारें चढ़ने और उतरने का माहिर था। वो कब उनके एक झगड़ा खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जल्दी से बालाई मंजिल के कमरे की बालकनी में गया और बालकनी में लगे जंगले से उतरकर सीधा गेट के सामने आ गया था, और फिर दीवारें उबूर करता हुआ पिछली दीवार से भाग गया। चोर चोर, अरे कोई पकड़ो इसे। पूरा मोहल्ला काशिफ शेख और बेगम शेख की आवाज़ सुनकर नींद से बेदार हो चुका था। मोहल्ले के चंद नौजवान अपनी टॉर्चें लेकर बाहर निकले और अनजाने में इधर उधर ढूंढने लगे। लेकिन शायद आतिफ मीर सबकी नजरों से किसी छलावे की तरह ओझल हो गया था। आतिफ मीर के ये तजर्बे की बात थी कि जहाँ भी वो डकैती करने जाता, इस इलाके को पहले अच्छी तरह से देखभाल लेता, पहले उस घर की जासूसी करता। और अब रात के इस पहर जब काशिफ शेख उसके पीछे भाग रहा था तो ये जासूसी उसके काफी काम आ रही थी। वो भाग रहा था जबकि उसके पीछे वो नौजवान लगे हुए थे, लेकिन वो आन की आन नजरों से ओझल हो चुका था। नौजवान थक हार कर वापस चले गए, जबकि आतिफ मीर अंधेरे का फायदा उठाते हुए कब्रिस्तान में वाक़े गोरकन के कमरे की दीवार के पीछे छुप गया। जब आतिफ मीर को अच्छी तरह इत्मीनान हो गया कि उसका पीछा करने वाले वापस जा चुके हैं, तो वो कब्रिस्तान से निकला, सीधा कब्रिस्तान के साथ वाक़े जामे मस्जिद में दाखिल हो गया। ये मस्जिद आतिफ मीर के लिए एक पनाहगाह साबित हुई। जब मस्जिद में वो दाखिल हुआ तो घड़ी के टिक टिक ने उसे वक्त का एहसास दिलाया। उसने घड़ी देखी तो रात के 3 बज चुके थे, लेकिन सुस्ताने के लिए अभी भी 2 घंटे बाकी थे। आतिफ को यहाँ लेटे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसकी आंख लग गई। उसे शायद ख्वाब में महसूस हुआ कि उसके सामने वाली दीवार में हलचल पैदा हुई है। आतिफ ने एकदम आंखें खोली तो देखा सामने वाली दीवार हिलने के साथ चाक हो गई है। तभी वहां से सफेद कपड़ों में मलबूस नौरानी चेहरे वाले कुछ लोग मस्जिद की सफों में आकर बैठने लगे। तकरीबन उन सभी के चेहरों से पानी के ताज़ा कतरे टपक रहे थे। बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था जैसे ये लोग अभी अभी वुज़ू करके मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। तभी देखते ही देखते मस्जिद भर गई। एक उम्र रसीदा शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और सीधा मिंबर पर जाकर बैठा। सभी हाज़रीन की तरफ मुड़कर मुखातिब हुआ। इतने में एक नौजवान, जिसके चेहरे पर अभी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी, उसने तिलावत करना शुरू कर दी। उसकी आवाज़ इस कदर मीठी थी कि आतिफ का दिल भी पिघल कर रह गया। तिलावत सुनकर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तभी मजमे में से दरमियानी उम्र का एक शख्स उठा। वो सबसे मुखातिब हुआ, कहने लगा, मौसिस सामीन, अब आप सबको रात के इस पहर अल्लाह के इस पाक घर में बुलाने का मकसद एक मसले का हल तलाश करना है। आप सब लोग जानते हैं कि इस कब्रिस्तान के शुमाल में चंद कदम के फासले पर एक हिंदू जादूगरनी है जिसका नाम शिवानगी है। वो इस कदर पलीद है कि इस बस्ती के कई लोग उसके हराम कामों की वजह से राह रास्त से भटक चुके हैं। वो मुसलसल इंसानों को नुकसान पहुंचा रही है
और इसी वजह से दिन ब दिन मस्जिद में नमाजियों की तादाद में भी खासी कमी आ चुकी है। हमें इसके लिए खुसूसी तौर पर तवज्जो देना होगी। अगर हम खुद कुछ करेंगे तो ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है। हमें किसी ऐसे मिंबर की ज़रूरत है जो इंसानों से दोस्ती रखता हो। इतने में निहायत ही उम्र रसीदा बुजुर्ग उठ खड़े हुए। इन्हें मिंबर पर बुलाया गया तो इन्होंने मिंबर पर बैठे बुजुर्ग से सरगोशी की। उसके बाद इन्होंने सारी मजलिस के सामने कहा, सामीन किराम, मेरी इस इलाके में एजाज नामी मुसलमान बुजुर्ग से गहरी दोस्ती है। मैं जानता हूँ कि वो जल्द ही मुझसे इस मसले के बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन मजलिस के सभी शुरका ने नफी में सर हिलाया। एक बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ और बोला, मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ करूँगा क्योंकि बुजुर्ग एजाज जल्दबाजी में शिवानगी से ज़्यादा लोगों का नुकसान करेंगे। अभी ये महफिल जारी थी कि मुअज्जिन मस्जिद में फजर की आज़ान देने के लिए दाखिल हुआ, जिसे देखकर जिस रफ्तार से मस्जिद में वो महफिल भरी थी दुगनी रफ्तार से खाली हो गई। मीर आतिफ का तो ये देखकर दिल ही धड़कना भूल गया था। मुअज्जिन ने मस्जिद में दाखिल होते ही मस्जिद की लाइट ऑन की और बाआवाज़े बुलंद आवाज़ देना शुरू कर दी। आतिफ मीर खड़ा ये सब देख रहा था। अजान से वो फारिग हुआ तो उसकी नज़र आतिफ पर पड़ी। वो उसके करीब आया और उससे पूछने लगा, तुम इतनी सवेरे मस्जिद में? जी हाँ, आतिफ ने इधर उधर देखते हुए कहा, गोया वो उन्हीं बुजुर्गों को तलाश कर रहा था। क्या हुआ, मुसाफिर हो या बीमार पड़ गए हो? उसने आतिफ मीर के माथे पर हाथ रखा। उसका माथा आग के अंगारे की तरह जल रहा था। कुछ ही देर में इमाम साहिब मस्जिद में दाखिल हुए। इन्होंने आतिफ मीर की हालत देखी तो मस्जिद के मुअज्जिन से कहा, बेटा इसे फौरन मेरे हुजरे में ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। मस्जिद का मुअज्जिन मीर आतिफ को इमाम साहिब के हुजरे में ले गया। इतनी देर में इमाम साहिब वापस अपने हुजरे में आ गए। कहने लगे, बेटा जल्दी से गर्म पानी लाओ। मुझे लगता है आज इस लड़के की मुलाकात खिजर साहिब से हो गई है, जिनकी यहाँ रात को मजलिस लगती है। इमाम साहिब ने मेरा मुंह गर्म पानी से धुलवाया। कुछ देर दम करने से मीर आतिफ को नींद आ गई। वो दोनों मस्जिद से वापस चले गए। जब मीर आतिफ की आंख खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। इमाम साहिब के मुअज्जिन ने मीर को नाश्ता करवाया। कुछ ही देर में इमाम साहिब फिर हुजरे में दाखिल हुए और उसे दम किया हुआ पानी पिलाया। मीर आतिफ अब बिल्कुल ठीक हो गया था। इमाम साहिब ने कहा, बेटा तुम रात को शेख साहिब के घर जिस घर से गए थे, आज के बाद दोबारा कभी भी ऐसी गलत हरकत मत करना। अगर तुम्हें पैसे का मसला हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरियात पूरी करने में तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन हराम से तौबा करो बेटा, और रात के वक्त तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, वरना यहाँ खलीक साहिब की भी मजलिस लगती है। अगर गलती से तुम उसमें शामिल हो जाते तो यहाँ से जिंदा सलामत हरगिज न जाते। ये कहकर वो चले गए। मुअज्जिज़ीन की इजाज़त से मीर ने उनका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से रुखसत हो गया। अगले दिन वो घर में लेटा हुआ था। बाहर बारिश के मौसम में आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मीर आतिफ डर के मारे उठा कि शायद पुलिस को उसका सुराग मिल गया है। लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो सामने एक औरत फकीर वाले लिबास में खड़ी उसे घूर रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं। वो दरवाज़ा खुलते ही हवा के झोंके की तरह अंदर आ गई और बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया। आते ही उसने मीर आतिफ को गर्दन से पकड़ लिया, जोर से ऊपर उठाया और ऊंची आवाज़ में बोली, बताओ कल रात को जिन्नात की मजलिस में मेरे बारे में क्या मंसूबाबंदी की गई? मीर आतिफ समझ गया कि ये औरत कोई आम औरत नहीं है। साथ ही उसे उसके रवैये पर गुस्सा भी बहुत आया। उसने जिस्म की सारी तवानाई जमा करके जोर का मुक्का उस औरत के मुंह पर मारा, जिससे उसकी नाक से खून का फव्वारा छूट गया। मीर आतिफ एक ताकतवर नौजवान था। उसने आओ देखा न ताओ औरत को जमीन पर गिराकर उसके सीने पर नाचना शुरू कर दिया। न जाने उस लम्हे में ऐसी क्या ताकत थी कि औरत की रूह चंद ही लम्हों में परवास कर गई। ये सब करते हुए मीर आतिफ के हाथों और जिस्म में अजीब सी तवानाई सी भर गई थी। औरत को मारते हुए वो अपने हवास खो बैठा था। इतने में वही लोग जिन्हें मीर ने मस्जिद में बैठे हुए देखा था, चमड़े का एक छोटा सा बैग लिए मीर के घर में दाखिल हुए।
انہوں نے وہ تھیلا میر کے ہاتھ میں تھمایا اور بولے، آپ کی مدد کا بے حد شکریہ، بالخصوص اس جادوگرنی کی موت کا، وہ بھی بغیر کسی نقصان کے۔ یہ لوگ انتہائی خوبصورت تھے، ان کے چہروں سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے میر عاطف کو وہ بستہ تھمایا اور شیوانگی کی لاش لے کر غائب ہو گئے۔ چمڑے کا وہ تھیلا جب میر عاطف نے کھولا، اس میں سونے کی انگوٹھیاں اور کچھ نقد رقم تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کے بعد اگر تمہیں کوئی بھی مشکل پیش آئے تو ہمیں بلا لینا۔ آج تک میر عاطف کے پاس چمڑے کا وہ بیگ موجود ہے۔ وہ خرچ کرتا ہے، لیکن ابھی تک میر عاطف نے جتنا بھی خرچ کیا آج تک کم نہیں ہوا۔ گویا اس کے ہاتھ جنات کا ایک ایسا خزانہ لگ گیا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کہانی کو سنتے ہوئے آپ کو کیسا لگا اور اس کہانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔